அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஹிந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर सत्संग कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम कल का ही कार्यक्रम है. कारक कारक मैंने कारक के बारे में विस्तार पूर्वक आपको सिखाया था. अभी ने को से ने को से का के की मे पर हे अरे. ने को से का के की मे पर हे अरे, यही कारक चिन्ह है. इन कारक चिन्हों के आधार पर हम वाक्य बना सकते हैं और वाक्य की रचना करके उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और भाषण दे सकते हैं. जो भी चाहे हम कर सकते हैं. इसलिए ये जो कारक जो है बड़ी விசேஷத்தாபூர்வக होती है. இந்த காரக் என்பது வேற்றுமொழி மிக முக்கியமான ஒன்று. ஏனென்றால் இது இல்லாமல் நம்மால் வாக்கியம் அமைக்கவே முடியாது. ஆகையால் இதனுடைய இந்த பாடத்தை இன்றைக்கு மீண்டும் தொடர்ந்திருக்கிறேன். இனி தொடர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்தான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது. அதை அரைகுறையாக விட்டுவிட முடியாது. ஆகவே நீங்கள் தவறாக எண்ண வேண்டாம். மீண்டும் இதை விளக்கவே இன்றைக்கும் எடுத்துக்கொண்டேன், நாளைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றேன் என்பதையும் நான் இங்கே பணிவோடு தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். और कल्वी इसी को मैं लेने वाला हूँ. उदाहरण है रामனை கூப்பிடு, राम को बुलाओ. यहाँ पर आई को मैंने को का प्रयोग किया है. राम को बुलाओ, रामனை கூப்பிடு. आई रामனை கூப்பிடு. पेनावाल எழுது, कलम से लिखो. कलम से लिखो, मैंने यहाँ पर से का प्रयोग किया है. ये रामனுக்கு பணம் கொடு, राम को पैसा दो. राम को पैसा दो, रामனுக்கு பணம் கொடு. भरतन रामனுடைய சகோதரன். भरत राम का भाई है. भरत राम का भाई है. भरत राम का भाई है. सीता रामனுடைய மனைவி. सीता राम की पत्नी है. सीता राम की पत्नी है. यहाँ पर का भाई है, की पत्नी है. और भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. यहाँ पर भरत और लक्ष्मण दो हैं, पुल्लिंग बहुवचन, इसलिए यहाँ पर के का प्रयोग है. का के की का. भरतனும் लक्ष्मणனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. यहाँ पर तमिल में सेम है, उड़य उड़य उड़य. लेकिन ஹிந்தியில் வந்து அடுத்து வருகின்ற பேச்சினுடைய பால் என்னவோ அதை பொறுத்து அந்த உடை என்ற சொல்லுக்கு இந்தி சொல் மாறும். ராமனுடைய பையன் போது பையன் லடுக்கா ஆண்பால் பேச்சொல், ஆகவே கா வந்துடும். ராமனுடைய சகோதரி பெண்பால், ஆகவே ராம் கி பஹன் ஹை வந்துடும், அது கீ வந்துடும். லடுக்கே இவர்கள் ராமனுடைய பையன்கள். ये राम के लड़के हैं. ये राम के लड़के हैं. இங்கே பையன்கள் ஆண்பால் பன்மையாகவே இங்கே ராம் கே வந்திருக்குது. ஆகவே இங்கே இந்தியை மட்டும் பார்க்கணும். கா கேக்கு அடுத்து வருகின்ற பேச்சலுடைய பாலை பார்க்க வேண்டும். சரி, அந்த பால் வந்து எது ஆண்பால் எது பெண்பால் என்று தனியாக விதி கிடையாது. சில வழி இருக்கிறது. அந்த வழியை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் பாலை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். அந்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு பிறகு வருகிறேன். இப்பொழுது சொல்லி உங்களை வந்து நான் கன்ஃபியூஸ் செய்ய நான் விரும்பவில்லை. ஆகவே தமிழிலே எல்லாம் உடையதான், எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனால் ஹிந்தியிலே மாற்றம் உடையது. மை ராம் கோ புலாவோ, ராமனை கூப்பிடு. பேனாவால் எழுது, கலம் சே லிகோ. ராமனுக்கு பணம் கொடு. ராம் கோ பைசா தோ. राम को पैसा दो. भरतन रामனுடைய சகோதரன். भरत राम का भाई है. सीता रामனுடைய மனைவி.
सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है. பரதனும் லக்ஷ்மணனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. இங்கே அடுத்தொரும் பெயர் சொல் ஆண்பால் ஒருமையாக இருந்தால் கா போட வேண்டும். அடுத்தொரும் பெயர் சொல் ஆண்பால் பன்மையாக இருந்தால் கே போட வேண்டும். அடுத்தொரும் பெயர் சொல் பெண்பால் ஒருமையாக இருந்தாலும் சரி பன்மையாக இருந்தாலும் சரி கீ போட வேண்டும். தமிழ் அப்படி கிடையாது, எல்லாமே उड़ेगा. सही, अब हम देखेंगे हिंदी में आएंगे और हिंदी में आएंगे तो राम को रामने कुपिड़. हिंदी में क्या बोलेंगे? तमिल में क्या बोलते हैं? राम को बुलाओ. तमिल में क्या बोलते हैं उसको? रामने कुपिड़. राम नहीं कुपिड़. हिंदी वाले आप लोग सुन लीजिए. कुपिड़, रामने कुपिड़, राम को बुलाओ. रामने कुपिड़, राम को बुलाओ. कलम से लिखो. कलम से लिखो. कलम से लिखो. कलम से लिखो. हिंदी में पेनावाल इड़दु. पे ना वाल पेनावाल ये लू दु. पेनावाल इड़दु. पेनावाल इड़दु. कलम से लिखो. पेनावाल इड़दु. कलम से लिखो. ठीक है. ராமனுக்கு பணம் கொடு. ராமனுக்கு பணம் கொடு. ராமனுக்கு பணம் கொடு. ராமனுக்கு பணம் கொடு. राम को राम ராமனுக்கு ராமனு இக்கு ராமனுக்கு पैसा சொல்லலாம். पैसा கொடு. கொடு கொடு. राम को पैसा दो. ராமனுக்கு பணம் கொடு. பணமே போடலாம். பணம் ஏன் போகக்கூடாது? பணம் போடலாமே. ராமனுக்கு பணம் கொடு. ப ந இம் பணம். ராமனுக்கு பணம் கொடு. राम को पैसा दो. तमिल में राम को बुलाओ. रामने कुपिड़. किया है. कलम से लिखो. पेनावाल इड़दु. पेनावाल इड़दु. कलम से लिखो. रामனுக்கு பணம் கொடு. राम को पैसा दो. राम को पैसा दो. भरत राम का भाई है. भरत राम का भाई है. भरत हिंदी में भरत भरत ராமனுடைய சகோதரன். संस्कृत में सहोदर बोलते हैं. सहोदर सहोदरन. स हो द र इन सहोदरन. भरत ராமனுடைய சகோதரன். भरत ராமனுடைய சகோதரன். सीता ராமனுடைய மனைவி. सीता राम की पत्नी है. हिंदी में सीता राम की पत्नी है. तमिल में सीता ராமனுடைய पत्नी को क्या बोलते हैं? मनेवी बोलते हैं. मनेवी. म नहीं वी मनेवी. सीता ராமனுடைய மனைவி. सीता
ராமனுடைய மனைவி, ராமனுடைய மனைவி. சீதா ராம் கி பத்னி है. சரி, பரதனும் லக்ஷ்மணும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. हिंदी में भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. यहाँ पर हिंदी में, तमिल में भरतन भरतनुम लक्ष्मणनुम सीता सीता ராமனுடைய மனைவி. सीता ராமனுடைய மனைவி. सीता राम की पत्नी है. பரதனும் லக்ஷ்மணனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். பரதனும் means और பரதனும் லக்ஷ்மணனும் ராமன் உடைய ராமன் உடைய சகோதரர்கள். ராமன் உடைய சகோதரர்கள். हिंदी में आता है சகோதரர்கள். சகோதரர்கள். भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. भरतனும் லக்ஷ்மணனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். பரதனும் லக்ஷ்மணனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். ராம் கோ புலாவோ, ராமனை கூப்பிடு. பேனாவால் எழுது. கலம் சே லிகோ, பேனாவால் எழுது. கலம் சே லிகோ, பேனாவால் எழுது. ராம் கோ பைசா தோ, ராமனுக்கு பணம் கொடு. ராமனுக்கு பணம் கொடு. ராம் கோ பைசா दो. भरत राम का भाई है. भरत राम का भाई है. भरतन ராமனுடைய சகோதரன். भरत राम का भाई है. भरतन ராமனுடைய சகோதரன். और सीता राम की पत्नी है. सीता राम की पत्नी है. सीता ராமனுடைய மனைவி. सीता ராமனுடைய மனைவி. भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. भरतனும் லக்ஷ்மணனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். भरतனும் லக்ஷ்மணனும் ராமனுடைய சகோதரர்கள். अब याद रखिए, यहाँ पर का के की तीनों आ गया. का के की तीनों आ गया. उत्तर भारत के भाइयों बहनों, आप लोगों को ये तमिल सिखाने की प्रेरणा मुझे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासंघ के
सभापति तमिलनाडु के अध्यक्ष श्री वर्मन के पिताजी शिव जयप्रकाश ADSP रिटायर्ड उनकी तिरुनेलवेली, उनसे मिली। ये प्रेरणा उन्होंने मुझे दी कि आप हिंदी के माध्यम से उत्तर भारत के हमारे क्षेत्रीय प्रदेश के मुख्य प्राधिकारियों को तमिल सिखावें। उनके जरिए ये तमिल भाषा सारे उत्तर भारत में लोगों में फैल जाएगी। वे आपस में आसानी से तमिल में भी बात कर सकेंगे। यही प्रेरणा मुझे उनसे मिली। इसलिए आपके अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासंघ के सभी पदाधिकारियों की चरण वंदना करके मैं अपनी सेवा का शुरुआत कर रहा हूँ। कल और परसों मैंने आप लोगों से अपील की थी कि व्हाट्सएप द्वारा अपील की थी कि हम ये कार्य करने वाले हैं। मैं और मेरा बेटा जो एस मोहन कुमार है, दोनों का नाम उसमें होगा। हम दोनों मिल करके अपना टीम है, उस टीम के साथ मिल करके ये कार्य कर रहे हैं। ये इसका सारा श्रेय अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा को ही मिलना चाहिए, मिलेगा ही। हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो मौका, ये जो अनुमति उन्होंने दी है, आपके नाम को, आपके फ़ोन नंबर का उपयोग करने का अधिकार, हक, अनुमति श्री शिव जयप्रकाश और वर्मन ने मुझे दी है। उन्हीं के उपदेश के आधार पर मैं ये कार्य शुरू कर रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। खास करके LP पटेल जो आपकी सभा के अध्यक्ष हैं, उनकी चरणों में मैं अपना सिर रख करके चरण वंदना करता हूँ। मैं आपसे मिला हूँ, पटेल जी से मिला हूँ। उनके पाँव छू टो करके मैंने रंगमंच पर भाषण दी है और अनुवाद भी किया है तंजावुर में। 8 साल पहले हमसे मुलाकात उनकी हुई थी। उसी के आधार पर शिव जयप्रकाश ने ये अनुमति और प्रेरणा दी कि सुंदरराजन जी, आप उत्तर भारत के हमारे क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से, मुख्य सदस्यों से आप संपर्क बढ़ावें और उनका फ़ोन नंबर मैं भेज रहा हूँ। उसी के आधार पर आप उनसे संपर्क करें और तमिल भाषा को उत्तर भारतवासियों के लिए सिखावें। इसलिए मैंने ये कार्य शुरू किया है। इसके लिए मैंने सिर्फ उनकी अनुमति ली है, क्योंकि आप सबसे मैं अपरिचित हूँ। इसी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सका। अगर भगवान की कृपा से मुलाकात हो तो बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है और आपकी भी मेहरबानी है, जो कि मुझे आपने अनुमति दी और आपको मेरा वीडियो जो है वो भेजने की अनुमति भी आपने प्रदान की। इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ और एहसानमंद हूँ। ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। आपके चरणों में, सभी के चरणों में मैंने 100 पदाधिकारियों को मैंने वीडियो भेजा है। उन 100 पदाधिकारियों की चरण वंदना करके मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद मुझे हमेशा के लिए देने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत एहसानमंद रहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो निश्चित है। इसलिए आपके आशीर्वाद से मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ। कृपया आशीर्वाद दें। धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम है, आज का पाठ है 16वां पाठ। ने को से का की मैं पर ए अरे। ने का तो मेरी नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ने के बाद को है, राम को बुलाओ, राम नहीं कूपिड़। उसके बाद से है, कलम से लिखो, पेनावाल इड़து। और राम को पैसा दो, रामन को पैसा कोடு, रामन को पणम कोடு, पैसा को पणम बोलते हैं। रामन को पणम कोடு,
उसके बाद से है, भरत काके की है, भरत राम का भाई है, भरत राम का भाई है, பரதன் ராமனுடைய சகோதரன், பரதன் ராமனுடைய சகோதரன். सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, सीता रामनुடைய சகோதரி, सीता राम की पत्नी है, सीता रामनुடைய सहोदरी. भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं, भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं. भरतனும் लक्ष्मणனும் रामனுடைய சகோதரர்கள். भरत और लक्ष्मण राम के भाई हैं, राम के भाई हैं. मैंने यहाँ पर ने को से और एक से है, का के की, दो से है ना, एक और से है, मैं उसको भी अभी बता रहा हूँ. यहाँ पर से का मतलब है, यहाँ पर देन विड़ विड़ राम भरत से बड़ा है, 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 राम भरत से बड़ा है. हिंदी में, तमिल में राम भरतனை விட, விட means से, விட பெரியவன், राम भरत से बड़ा है, रामन भरतனை விட பெரியவன். कटहल आम, कटहल से छोटा है, आम कटहल से छोटा है, आम कटहल से छोटा है. आम मामड़म, हिंदी में है, आम कटहल से छोटा है, छोटा है. आम कटहल से छोटा है, आम कटहल से छोटा है. मामबड़म, मामबड़म पलापड़म, पलापड़म मतलब कटहल, पलापड़म பலாப்பழத்தை விட, பலாப்பழத்தை விட சிறியது, छोटा है, சிறியது. மாம்பழம் பலாப்பழத்தை விட சிறியது. आम कटहल से छोटा है, आम कटहल से छोटा है. कटहल आम से बड़ा है, उसका उल्टा भी कर सकते हैं, कटहल आम से बड़ा है और आम कटहल से छोटा है, आम कटहल से छोटा है. कटहल कटहल कटहल, आम कटहल से छोटा है, से कटहल से छोटा है. राम भरत से बड़ा है, राम भरत से बड़ा है, रावण भरत में बड़े பெரியவன் और आम कटहल से छोटा है. மாம்பழம் பலாப்பழத்தை விட சிறியது, आम कटहल से छोटा है. यहाँ पर से भी आ गया, से आ गया, को आ गया, और बाकी में पर है, में पर है अरे, में पर है अरे.
ए पर ए अरे। राम घर में है। राम घर में है। राम राम घर में है। राम घर में है। तमिल में रामन வீட்டில் வீட்டில் இருக்கிறான். ஐ மீன்ஸ் இருக்கிறான். ஈரு இக் கி ரா இன். ராமன் வீட்டில் இருக்கிறான். ராமன் வீட்டில் இருக்கிறான். राम घर में है। सही। उसके बाद पर है। पर राम कुर्सी पर राम कुर्सी पर बैठा है। राम कुर्सी पर बैठा है। राम कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पर बैठा है। राम कुर्सी पर बैठा है। राम कुर्सी पर राम कुर्सी पर बैठा है। बैठा है। बैठा है। राम नाற்காலி सॉरी नाற்காலி नाற்காலி மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறான். உ இட் கா இர் இன் டு. உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறான். இ ரு இக் கி ரா இன். இருக்கிறான். ராமன் நாற்காலி மேல் உட்கார்ந்து இருக்கிறான். உட்கார்ந்து 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 இருக்கிறான். राम नाற்காலி மீது உட்கார்ந்திருக்கிறான். राम कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पर मैं आ गया, पर भी आ गया। मैं और पर दोनों इसमें समा गए हैं, आ गए हैं। मैं भी आ गया और पर भी आ गया। अभी काके की मैं पर, उसके बाद हे अरे। हे अरे का मतलब है कि आप देखिए ये हे अरे का मतलब है
किसी को पुकारा जाए या किसी को बुलाया जाए, किसी को पुकारा जाए या किसी को बुलाया जाए, किसी को पुकारा जाए या किसी को बुलाया जाए, उसी को क्या कहते हैं, हे अरे बोलते हैं। भक्त मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान हम पर कृपा कर, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान हम पर कृपा कर, हे भगवान हम पर कृपा कर, हे हे भगवान हम पर कृपा कर, हे भगवान हम पर कृपा कर। तमिल में கடவுளே அல்லது பகவானே, பகவானே எங்கள் மேல், எங்கள் மேல், எங்கள் மேல் கருணை காட்டு, கருணை காட்டு, கருணை காட்டு। हे भगवाने எங்கள் மீது करुणை காட்டு, हे भगवान हम पर कृपा कर। और किसी बच्चे को बोलते हैं, अरे गोपू इधर आओ, अरे गोपू इधर आओ, अरे गोपू इधर आओ। अरे अरे गोपू इधर इधर आओ। डे गोपू तमिल में डे गोपू, डे गोपू इंगे इंगे वा, डे गोपू इंगे वा, अरे गोपू इधर आओ, डे गोपू इंगे वा, अरे गोपू इधर आओ, अरे गोपू इधर आओ, डे गोपू इंगे वा, डे गोपू इंगे वा, वा वा इंगे यहाँ, अरे गोपू डे गोपू इंगे वा, डे गोपू, गोपू दिखता नहीं है ना इसी तरह से, गोपू गोपू इंगे वा, अरे गोपू इधर आओ, डे गोपू इंगे वा। हाँ, हे भगवान हम पर कृपा करो, हे भगवान हम पर कृपा करो। साफ साफ दिखता नहीं है, कृपा करो, कृपा कर कर करो, हे भगवान हम पर कृपा करो, भगवाने எங்கள் மீது கருணை காட்டு, अरे गोपू इधर आओ, हे गोप डे गोपू इंगे वा। इस प्रकार हे अरे का प्रयोग होता है।
इस प्रकार ए अरे का प्रयोग होता है। हमने अभी देखा ने को से का के की मे पर हे अरे, इन सबका प्रयोग हमने आज कर लिया है। और இன்றைய ने को से का के की मे पर हे अरे अंतिम நாம் இன்றைக்கு பார்த்து விட்டோம்। அடுத்தபடியாக வேற்றுமை உருவுகள் தம்மை அடுத்து பிரதிப்பெயர் சொற்கள் தம்மை அடுத்து वेற்றுமை உருவுகள் वरुम பொழுது उर्व मारुबाடு अடையும்। इसी को देखना है, कल देखेंगे। यहाँ पर सर्वनामों का रूपांतर, उसका टॉपिक होता है सर्वनामों का रूपांतर। सर्वनामों का रूपांतर, सर्वनामों का रूपांतर, सर्वनामों का रूपांतर, सर्वनामों का रूपांतर। பிரதிபெயர் சொற்களின் பிரதிபெயர் சொற்களின் உருவ மாறுபாடு, உருவ மாறுபாடு, பிரதிபெயர் சொற்களின் உருவ மாறுபாடு, பிரதிபெயர் சொற்களின் உருவ மாறுபாடு, பிரதிபெயர் சொற்களின் உருவ மாறுபாடு। इसको हिंदी तमिल में क्या कहते हैं? सर्वनाम को कहते हैं प्रतिपेय சொற்கள்। பெயர் சொற்களின் சொற்களின் உருவ மாறுபாடு, மாறுபாடு, பிரதிபெயர் சொற்களின் உருவ மாறுபாடு, பிரதிபெயர் சொற்களின் उर्व मारुबाड़। ये हम इसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको अभी से मैंने आपको याद दिलाया। ये सर्वनामों का रूपांतर, प्रतिपेय சொற்களின் उर्व मारुबाड़, ये जो ये बड़ा तालिका बनेगा, ये तालिका हम कल बनाएंगे। और आज मैं यहाँ तक ख़त्म करना चाहता हूँ। और जो भी आप लोग सुनते हैं या देखते हैं, आपको पसंद आए तो आप कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी सलाहें, अमूल्य सलाहें दीजिए, ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। सुधार करना है और सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार हम ज़रूर करेंगे और करके, क्योंकि जो ये एडिटिंग वगैरह कुछ करना है वो काम अभी करने वाला हूँ। करने से और भी आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर समय की कमी के कारण और आर्थिक परिस्थिति का कारण भी थोड़ा डिले हो रहा है। इसलिए फिर भी यहाँ पर क्वालिटी में कमी नहीं होगा, क्वालिटी ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा इसको जो एडिटिंग करके आपको दिखाने में जरा सा भेद या फ़र्क आ रही है, उसे मैं जानता हूँ। फिर भी आप थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। और भविष्य में निकट चंद दिनों में इस कमी को भी मैं पूरा कर दूँगा। ये मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। इन प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा देता हूँ। आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक सुंदर राजन, MA हिंदी गोल्ड मेडलिस्ट, MA हिस्ट्री, MA इतिहास, B.Ed, MPhil, साहित्य रत्न, हिंदी प्रचारक। आपका जो तमिलनाडु के जिलाधिकारी विशेषाधिकारी शिव जयप्रकाश द्वारा रचित चेंगड़ाम की रणविजय आपने पढ़ा होगा। वो काव्य किताब, काव्यात्मक मैंने
काव्यानुवाद किया था उसको, वो आपने पढ़ा होगा। उस काव्यानुवाद का अनुवादक मैं हूँ। मैं हूँ आप सुंदरराजन हूँ। उसमें मेरा फ़ोटो भी है और नाम भी है, पता भी है, आपने देखा होगा। इसलिए आपको मैं याद दिलाता हूँ, चेरन चंकणान की रण विजय, उस किताब का नाम है, उस पोथी का नाम है चेरमान चिंगणान की रण विजय। ये श्रीमान शिव जयप्रकाश जी का तमिल में रचा हुआ ग्रंथ है। उसी ग्रंथ को मैंने हिंदी में वैसे के वैसे काव्य अनुवाद किया है। उसके गद्य में नहीं किया है, गद्य और पद्य काव्य अनुवाद किया है। आपके कर कमलों में शायद वो आ गया, पहुंच गया होगा। आपने उसका रसास्वादन किया भी होगा। इसी आशा से, इसी इच्छा से, इसी प्रेरणा से मैंने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा और ताकि मैं अपना कार्य सुचारू रूप से बिना निर्विघ्न करता रहूं और मेरी सेवा चलता रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में बांटें। यही मेरा आपसे सविनय निवेदन है। इन निवेदन के साथ मैं आपसे कल तक के लिए विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आप सुंदरराजन। धन्यवाद। जय हिंद। நீ எதுக்குடா அம்மா கேட்டுடா, அம்மா படிச்சுட்டு போயிருக்கு. வெளியே போட்டிருக்கா? மெதுவாக